Good afternoon, student. We are doing 11th standard history, and today we will start 10th chapter, Displacing Indigenous People. This chapter recounts some aspect of history of the native peoples of America and Australia. इस चैप्टर में हम नेटिव पीपल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे. So, see this displacing indigenous people, history of native people, America and Australia. Firstly, we will learn the meaning of native. What is native? Native, here in this chapter you will read some words of same meanings. Indigenous, native, inhabitants, dweller. These meanings are a person connected with place where he she were born or where he she always live. एक पर्सन जो कि काफ़ी समय से एक ही जगह पे रह रहा है या वहीं पर पैदा हुए तो उसे हम इंडिजीनियस, नेटिव और इनहैबिटेंट और ड्वेलर्स पीपल्स बोल देते हैं. तो इसके बाद एक और वर्ड आपको इस चैप्टर में आएगा बार बार, इमिग्रेंट. इमिग्रेंट क्या होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली. मतलब एक पर्सन, एक व्यक्ति कोई फॉरेन विदेश से कोई आता है और उस जगह पर रहने लग जाता है, परमानेंटली रहने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट पीपल. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड नेटिव एंड इमिग्रेंट पीपल्स. दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ नेटिव एंड इमिग्रेंट पीपल्स. नेटिव पीपल्स, पीपल्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. इमिग्रेंट पीपल फ्रॉम यूरोप. From the 18th century, more areas of South America, Central America, North America, South Africa, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe. मतलब इसे हम मैप पे समझते हैं. So see the word map. See this कि 18th century में क्या होता है? यूरोपियंस पीपल्स नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका एंड अफ्रीका एंड टू न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ पे जाके रहने लगते हैं. वाई ये पीपल्स, यूरोपियंस पीपल्स क्यों जाते हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ट्रेड. सो दे केम इन दीज एरियाज. इन द 19th and 20th century, इसके बाद जैसे कि 18th century में हमने पढ़ा कि यूरोपियंस पीपल्स जाते हैं, तो 19th and 20th century पीपल फ्रॉम एशियन कंट्री आल्सो माइग्रेटेड टू सम ऑफ दीज कंट्री. एशियंस कंट्रीज़ के पीपल्स भी यहाँ पर आकर माइग्रेट होते हैं. टुडे दीज यूरोपियन एंड एशियन फॉर्म द मेजॉरिटी इन these country and the number of the native inhabitants are very small. तो हमने क्या किया था कि 18th century में यूरोपियंस पीपल्स एंड 19th and 20th century में एशियंस पीपल्स यहाँ इन जगहों पे जाके रहते हैं. तो यहाँ पर इन लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है और जो नेटिव पीपल्स होते हैं वो नेटिव इनहेबिटेंट्स, मतलब जो नेटिव पीपल्स होते हैं वहाँ के आम रहने वाले, पहले से रहने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है. तो इन दिस स्टोरी वी विल रीड about the Americas and Australia's native people and how the European peoples capture their land. So firstly we will do the location of North America, क्योंकि यूरोपियंस पीपल जब नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ हमें उसकी लोकेशन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्थ अमेरिका में की लोकेशन कैसी है. सो बी कंटिन्यू. द continent of the North America extend from Arctic Circle to the Tropic of Cancer, from the Pacific to the Atlantic Ocean. West of the chain of Rocky Mountain is the desert of Arizona and Nevada. Still further west, the Sierra Nevada mountains. So to the east, the Great Plains, the Great Lakes, the valleys of Mississippi and Ohio, and the Appalachian mountain. To the south is Mexico. So this location we will do in map so that you can understand properly. Okay, now see this. This is a North America area. Here is, you know very well, here is Canada, here is USA and here is Mexico. So we will do the location in the map now. There is Arctic Ocean. Arctic Ocean is here and then Tropic of Cancer. It is between it is between in Arctic Ocean and Tropic of Cancer, means in North Arctic Ocean and in South Tropic of Cancer. In the West Pacific Ocean and in East Atlantic Ocean. Now see the geographical areas of this
See here, west of the chain of Rocky Mountains is the desert of Nevada and Arizona. Then further to west, सीरिया नेवेदा माउंटेन्स, यहाँ पे सीरिया नेवेदा माउंटेन्स आते हैं. देन हेयर इज़, ईस्ट की तरफ जाते हैं थोड़ा सा तो ग्रेट प्लेन्स शुरू हो जाते हैं. देन हेयर इज़ ओहियो एंड मिसिसिपी, एंड इन द साउथ दैट इज़ मेक्सिको. ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ फर्दर सी 40% ऑफ कनाडा इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट. हमने जो कनाडा की लोकेशन देखी तो वहाँ पे 40% जो है फॉरेस्ट है, जंगल है. तो जो यूरोपियंस और एशियंस इन कंट्रीज़ में आते हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका की हम स्टोरी कर रहे हैं. तो नॉर्थ अमेरिका में आते, वाई यूरोपियन आते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ उनके ट्रेड के बेनिफिशियल की चीज़ें यहाँ मिलती है. सो नाउ वी विल रीडिंग अबाउट दिस. ऑयल, गैस, मिनरल सोर्सेज आर फाउंड इन मैनी एरियाज which explain the many big industries in the USA and Canada. Today, wheat, corn, and fruit are grown extensively, and fishing is a major industry in Canada. तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑयल, गैस और मिनरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है यूएसए में, मतलब और कनाडा में इन चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी है. तो और यहाँ पे वीट, कॉर्न, फ्रूट्स भी अच्छा होता है. माइनिंग, तो इन चीज़ों की मतलब जो यूरोपियन ट्रेडर या एशियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ लालच के लिए आते हैं. वो अपना मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हैव बीन डेवलप ओनली इन द लास्ट 200 ईयर. इमिग्रेंट फ्रॉम यूरोप, जब यूरोप के पीपल यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आते हैं तो वहाँ पे वो माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे शुरू कर देते हैं. तो जो अफ्रीका, चाइना और यूरोप के लोग यहाँ पे आते हैं तो वो अपने मतलब फ़ायदे के लिए यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह करते हैं. बट देयर वर पीपल हु हैड बीन लिविंग इन द नॉर्थ अमेरिका फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर बिफोर द यूरोपियन लर्नड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. मतलब कि हमने क्या देखा कि यूरोपियंस पीपल जो 18th और 18th सेंचुरी में आते हैं, 19th एंड 20th सेंचुरी में एशियंस पीपल्स आते हैं. तो उनसे पहले भी इन 1000 ईयर बिफोर, मतलब हज़ारों साल पहले वहाँ नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत से लोग रहते थे जिनको हम नेटिव पीपल्स बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम नेटिव पीपल्स और इमिग्रेंट्स पीपल्स की हम स्टोरी करेंगे. सो फॉर टुडे इट्स इनफ. हैव अ नाइस डे.